हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल टू सैनी पब्लिक हाई स्कूल यूट्यूब चैनल. एंड लास्टली, in the previous two videos we have started the control and coordination. पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन. दूसरे वीडियो में हमने किया था स्टडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज नेफ्रॉन के बारे में स्टडी किया था, स्ट्रक्चर देखा था. नाउ टुडे we have to discuss the central nervous system, that is brain and spinal cord. किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो आवर टुडेज टॉपिक इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यू नो दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें दो पार्ट्स आते हैं. नंबर वन, इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड नंबर सेकंड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. तो पहले हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फिर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे और किस पार्ट का क्या फंक्शन है. वी हैव टू स्टडी ऑल दैट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन, इट स्ट्रक्चर एज वेल एज इट इज फंक्शनिंग. नाउ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन. Human brain is divided into three parts, three regions, three types. There are three divisions of the human brain. Number one, forebrain, midbrain, and the third part is called as hindbrain. Remember, forebrain is also called as prosencephalon. Prosencephalon. Midbrain is also called as mesencephalon. And the hindbrain is also called as rhombencephalon. Rhombencephalon. Brain is also called as encephalon. Brain is also called as sphalon. So the human brain is divided into three parts: forebrain or prosencephalon, midbrain or mesencephalon, and the hindbrain or rhombencephalon. Now we have to study these three divisions of the brain one by one. Number one, forebrain. Forebrain consists of two parts. Forebrain consists of three parts. Number one, this forebrain includes number one, cerebrum. Number second, olfactory lobes. And number third, diencephala. इन चीजों एक एक करके हमको डिस्कस करेंगे सारे पार्ट्स को. पहले मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं कि किस पार्ट में क्या क्या रीजन कौन से पार्ट आते हैं. सो दिस फोरब्रेन इंक्लूड्स दीज थ्री पार्ट्स: cerebrum, olfactory lobes and diencephala. This midbrain, it includes number one, optic lobes. And these are also called as corpora quadrigemina. Number one, optic lobes or corpora quadrigemina and crus cerebra or crura cerebri. These are also called as cerebral peduncles. Crura cerebri or cerebral peduncles.
These are the two parts included in midbrain. Now this hindbrain, it also includes three parts. Number one, cerebellum. Number one, cerebellum. Number second, pons varoli, and number third part, medulla oblongata. Medulla oblongata. Okay, so our brain is divided into these three regions, three divisions: forebrain, midbrain, and the hindbrain. Forebrain includes these three parts: cerebellum, olfactory lobes, diencephala. Midbrain includes optic lobes or corpora quadrigemina, and crura cerebri or cerebral peduncle. And the hindbrain includes cerebellum, pons varoli, and medulla oblongata. Now we'll discuss these one by one, all parts. So अब हम डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन के पार्ट्स को, फंक्शन भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे. सो फोर ब्रेन. अब फोर ब्रेन का पहला पार्ट हमने क्या देखा था? सेरेब्रम. का पहला पार्ट जो हमने देखा था सेरेब्रम है. सेरेब्रम is the largest part of the brain. It is the largest part of the brain. It is the largest part of the brain, and it constitutes about 80% of the brain. सेरेब्रम जो है, जो फोर ब्रेन का एक पार्ट है, ये ब्रेन के सब जितने भी हिस्से हैं, जितने भी पार्ट्स ब्रेन के जितने हमने देखे भी, सारी सबसे बड़ा पार्ट है. एंड ये आगे से लेके ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कवर करता है, आगे से लेके पीछे तक जितने भी पार्ट्स है सबको कवर करता है. एंड इट इंक्लूड्स, इट फॉर्म्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल ब्रेन. नाउ this is, I am drawing the diagram of cerebrum. This is the cerebrum. This is the cerebrum. It is like this. There are depressions, there are elevations. Same here. So cerebrum is the largest part of the brain, and this cerebrum, it is divided into two hemispheres. It is divided into two lobes by a longitudinal fissure, which is called, it is a longitudinal fissure here. Longitudinal fissure. ये सेरेब्रम जो है एक स्फीयर की तरह है, गोल की तरह है, और इसके दो बीच में एक दरार जैसी है, इसको फिशर कहते हैं. और इससे, इस दरार से इसके दो लोब्स बन जाते हैं, और इन दो लोब्स को अलग अलग करके हम नाम क्या कहते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक है. अब ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है, हर एक cerebral hemisphere जो है, each cerebral hemisphere, there are two cerebral hemispheres, each cerebral hemisphere has, it is convoluted. The cerebral hemispheres are convoluted. These are thrown into foldings. In foldings there are elevations, there are depressions. There are elevations, there are depressions. ठीक है. The elevations are called as gyri. The elevations are called as gyri. These are the elevations, these are called as gyri, and these are the depressions. These depressions are called as sulci. ठीक है. तो cerebrum on the outer surface, it is thrown into folds. Folds means the elevations and the depressions. The elevations are called as the gyri, and the depressions are called as the sulci. Okay, it is clear. Now, what is the function of these elevations? Why are there elevations? Why are there depressions? Because these elevations and depressions, they increase the surface area of the cerebrum in order to accommodate more and more neurons. Okay. Now, first of all, इससे पहले एक चीज और याद रखो, ये जो हमने ब्रेन स्टार्ट किया है,
ये ब्रेन जो है, ब्रेन इज जो ह्यूमन ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रेन. This human brain is externally covered by three membranes. This human brain is externally covered by three membranes. This is the first membrane, the second membrane, and the third membrane. The human brain, because it is an important, most important part of the central nervous system, it is covered externally by three membranes. The outermost membrane is called as dura mater. Middle one is called as arachnoid membrane, and the innermost layer is called as pia mater. Okay. Now this brain is present in our sickle, present in our sickle, the cranium, and covered externally by three membranes: dura mater, arachnoid membrane, and pia mater. There are spaces between the membranes. The space present below the dura mater, between the dura mater and arachnoid membrane, there is a space. This space is called as subdural space. Subdural space, and the space between the arachnoid membrane and the pia mater, this space is called as subarachnoid space. इट इज क्लियर. ह्यूमन ब्रेन जो है, इसके बाहर से तीन कवरिंग्स है, तीन मेम्ब्रेन्स है. जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है इसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, मिडिल वाली लेयर को arachnoid मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर वाली है इसको हम बोलते हैं दिस pia mater. अब ये तीनों मेम्ब्रेन ये वाली स्पेस है, सब arachnoid स्पेस, इसके अंदर भरा हुआ होता है एक स्पेशल फ्लूइड जिसको हम cerebrospinal fluid कहते हैं. This subarachnoid space, it is filled with a special fluid, cerebrospinal fluid. ठीक है, ये cerebrospinal fluid यहाँ पूरा होता है बाहर से. This cerebrospinal fluid जो है, it maintains a constant pressure around the brain and it makes the brain moist. It is a shock absorbent. Okay, now हमने जो फोरब्रेन का पहला पार्ट देखा था सेरिब्रम, तो सेरिब्रम में हमने क्या देखा, ये चीजें आप याद रखनी है. तो सेरिब्रम का पहला पार्ट जो सेरिब्रम हमने देखा था फोरब्रेन का, इसमें दो हेमिस्फीयर्स होते हैं जिनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं. और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, इनके जो आउटर सरफेस है, दे आर थ्रोन इनटू फोल्ड्स. द एलिवेशंस आर कॉल्ड एज gyri and the depressions are called as sulci, and these increase the surface area of the cerebrum in order to accommodate more and more neurons because the cranial cavity is fixed. Now this cerebrum, अब इसकी आउटर सरफेस, अगर हम सिलेबस की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे सेरिब्रम का, तो जो बाहर वाले इस तरह से आपको समझ आएगा. फॉर एग्जांपल एक मैं सेक्शन काट के दिखा रहा हूं इस तरह से. सेक्शन काट के अगर हम इस तरह देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो आउटर मोस्ट इसके दो रीजन्स होते हैं. आउटर मोस्ट रीजन जो है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला है इसको हम बोलते हैं मेडुला. इंटरनली जो सेरिब्रम है, इसका आउटर वाला जो रीजन है कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला है. जो कॉर्टेक्स क्या चीज है, मेडुला क्या चीज है, इस कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं ग्रे मैटर. मेडुला को हम व्हाइट मैटर कहते हैं. व्हाइट मैटर. नाउ व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाट इज व्हाइट मैटर? अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने देखा था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था. उसमें हमने देखा कि न्यूरॉन जो है इसकी सेल बॉडी है, और इसके बाद एक्सॉन इसका है. इस तरह से ये सेल बॉडी हमने देखी थी और ये एक्सॉन. अब ये जो इसका सरफेस है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके जो सरफेस है, एक्चुअली सरफेस जो है इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल बॉडीज होते हैं. न्यूरॉन की सेल बॉडीज होते हैं. वन टू सेवरल लेयर्स ऑफ द न्यूरॉन्स
द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, यहाँ से, और ये बनाते हैं हमारा इसका ऊपर बाहर वाला हिस्सा जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं या कहते हैं ग्रे मैटर। ओके, बिकॉज ये ग्रेश कलर का होता है। इसमें जो निसिल ग्रेन्यूल्स मैंने कहा था, निसिल ग्रेन्यूल होते हैं, उनका कलर ग्रेश कलर का होता है। और यहाँ पे इज अ कलेक्शन, द आउटर सरफेस में कलेक्शन ऑफ वन टू सेवरल लेयर्स होते हैं न्यूरॉन्स के, और इसकी वजह से इसको बोलते हैं ग्रे मैटर और कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो लेयर है, इट इंक्लूड्स, देयर आर द नर्व फाइबर्स, द एक्सोनिक पोर्शंस। एक्सॉन्स होते हैं, और कौन से एक्सॉन्स होते हैं? माइलिनेटेड एक्सॉन। अंदर वाला जो है, जो व्हाइट मैटर, बिकॉज ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स, दीस आर द माइलिनेटेड एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स। वो भी हमने देखा था, न्यूरॉन्स दो टाइप्स के होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। और ये वाले जो है अंदर मेडुला में, वो उन न्यूरॉन्स के जो कि सरफेस में है, उनके एक्सॉन जो निकल के अंदर जा रहे हैं, वो माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड माइलिन शीट का होता है, माइलिन शीट व्हाइट कलर का होता है, और इसीलिए अंदर व्हाइट कलर का होता है, इसलिए हम उसको व्हाइट मैटर कहते हैं। ओके, नाउ ये हो गया ये चीज। नाउ उसके बाद अब ये सेरेब्रम जो है, अंदर से इनके ये हॉलो होते हैं, दीज आर हॉलो इनसाइड, ये अंदर से ये हॉलो होते हैं, मींस कि इनके अंदर केविटीज होती है, छोटी सी केविटीज होती है इनके अंदर। इसमें एक केविटी है, इसमें एक केविटी, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर एक केविटी होती है। उन केविटीज को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पैरासील्स, पैरासील्स, या कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, internally the two cerebral hemispheres are hollow, there are cavities present in each cerebral hemisphere, the cavities are called as paraseals or first and second ventricle of the brain। okay, तो ये होगी ये चीज। अब इसके बाद एक और चीज है, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम एक चीज है, इसको हम हार्ड बॉडी भी बोलते हैं, हार्ड बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज हार्ड बॉडी। जो ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं अंदर की तरफ, इन्फीरियर से, ये इस तरह से सेरेब्रम यहाँ से यहाँ तक होता है ऊपर। जब आप सेक्शन काट के आप जाएंगे आगे तो देखेंगे, जब सर्जरी करते हैं यहाँ से कट मारते हैं तो ऊपर से आपको दिखेगा सेरेब्रम, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेरेब्रम दिखेगा। सेरेब्रम को जो नीचे वाला साइड है, इन्फीरियर साइड है, वेंट्रल साइड का हो गया, इसके वहां दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, उनको कनेक्ट करते हैं एक ट्रांसवर्स बैंड, इज ए ट्रांसवर्स बैंड ऑफ दिस कॉर्पस कैलोसम और हार्ड बॉडी, इट इज ए ट्रांसवर्स बैंड ऑफ, it is a transverse band of nervous tracts, transverse band of nervous tracts means a myelinated, it's a myelinated axons होते हैं, और they connect the cerebral hemisphere, they connected the cerebral hemispheres from the ventral side। तो अंदर की साइड से, वेंट्रल साइड से इन दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। ये इट्स अ हार्ड बॉडी, बिकॉज ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, वो अंदर से इन दो को कनेक्ट करके रखते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम और हार्ड बॉडी। ओके, नाउ दिस कॉर्पस कैलोसम, दिस टेल्स वन साइड ऑफ द सेरेब्रम व्हाट द अदर साइड इज डूइंग, and it makes the coordination between the two cerebral hemispheres। okay, now ये सेरेब्रम जो है, अब इसके फंक्शंस क्या है, साथ साथ में फंक्शन डिस्कस करेंगे। सेरेब्रम जो है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम। नंबर 1, it is concerned with the cerebrum, it is concerned with logical analysis, it is concerned with logical analysis, willpower, personality, learning, speech, etc। एक चीज, this cerebrum, the first part of the forebrain, it is concerned with the logical analysis, willpower, personality, learning, speech, etc। Number 2, it is
meant for understanding smell, taste, vision and hearing. Okay, we understand, we how we can smell what we have smelled, what the we is for understanding taste, हमने मजा चखा है क्या है कैसे है, तो ये सारा कुछ कंट्रोल करता है ये ब्रेन सेरेब्रम से. It is these the things are controlled by the cerebrum. Number third, काफी दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है फोर ब्रेन का, ऑप्टिक लोब या ऑल्फैक्टरी लोब्स. दूसरा पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब्स. ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स. ये ऑल्फैक्टरी लोब जो दे आर टू इन नंबर. ये ऑल्फैक्टरी लोब्स क्लब शेप्ड बॉडीज होती है. दे आर क्लब शेप्ड बॉडीज. They are club shaped bodies and they consist of two parts. These olfactory lobes are two in number and they are club shaped bodies including two parts. Number one, olfactory bulb, and number second, olfactory tract. And these are present on the inferior side of the cerebrum. Cerebrum के नीचे साइड से होते हैं दो olfactory lobe. इस तरह से मान लो कि ये सेरेब्रम है, दो लोब्स. ये वेंट्रल व्यू दिखा रहा हूं आपको, वेंट्रल व्यू. ये सेरेब्रम है अंदर से नीचे वाले साइड से, इंफीरियर साइड से. तो यहां से दो लोब्स होते हैं, क्लब शेप्ड बॉडी. इस तरह से, इस तरह से दो होते हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं. ये ऊपर वाला हिस्सा बल्ब जैसा है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब. और नीचे वाला जो है इसको ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहते हैं. ठीक है. नाउ दिस व्हाट ऑल्फैक्टरी बल्ब इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स. And this olfactory tract, it is a bundle of the nerve fibers. It is the bundle of the axons of the neurons, and it is the collection of the these cell bodies of the neurons. Okay, so these are the two olfactory lobes. Now these olfactory lobes are not so much developed in humans, and these olfactory lobes are concerned with the sense of smell. These are concerned with the sense of smell. These are concerned with the sense of smell. They are concerned with the sense of smell. That means they receive this sense of olfaction from the olfactory membrane present at the upper chamber of the nasal passage. Now the third part of the forebrain, diencephalon. Diencephalon. Diencephalon is another important part of the forebrain. It is also present on the inferior side of the brain, inferior or ventral side of the brain. This diencephalon, and this diencephalon this is the diencephalon. Diencephalon, its upper part, the upper part of the diencephalon is called as epithalamus. Its lower part is called as hypothalamus. Hypothalamus. This is the upper part, it is epithalamus, and this is the lower part, this is called as hypothalamus. And the sides, the walls of the diencephalon are called as thalami. Thalami. This is the thalamus.
The diencephalon is another structure, another very important part of the forebrain. Its upper part is called as epithalamus, its lower part is called as hypothalamus, and the walls are called as the thalami. Okay, now this epithalamus, it is कनेक्टेड विद द अंडरलाइंग पायमेटर। अभी इससे पहले हमने देखा था ब्रेन के, मैंने बोला था ऊपर 3 कवरिंग्स होती है। सबसे अंदर वाली जो है पायमेटर है, बीच वाली अरेक्नोइड मेम्ब्रेन और बाहर वाली ड्यूरा मैटर। ये जो है, ये पायमेटर जो है, ये इस ये जो डेंसप्लांट एपिथैलेमस है, इसका ऊपर वाला जो है पायमेटर के साथ जुड़ा होता है, इसके एपिथैलेमस, और यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस epithalamus is fused with the overlined pyometer and it forms a structure which is called as anterior choroid plexus। ठीक है, ये जो है एपिथैलेमस, ये इसके ऊपर जो पायमेटर की कवरिंग है, मेम्ब्रेन कवरिंग है, वो इसके साथ फ्यूज होता है और एक स्ट्रक्चर हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर बना देता है। इसको हम एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस बनाता है। इसका फंक्शन क्या है ये हम अभी देखेंगे। जो हमने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखा था, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भरा होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और जो है ब्रेन के जो कैविटीज हमने बताई 2, जितने भी आगे भी एक और देखा हम देखेंगे, उनमें ये जो स्पेशल फ्लूइड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, यहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ये बनता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, नाउ एक और चीज है, इसका जो एपिथैलेमस जो है ऊपर वाला हिस्सा डायस्पेलन का, इसके एंटीरियर साइड से पाइनियल ग्लैंड अटैच होता है। इसके आगे से एंटीरियर साइड से पाइनियल ग्लैंड होता है, एक पाइनियल ग्लैंड होता है, पाइनियल ग्लैंड अटैच होता है एंटीरियर साइड से। और इस पाइनियल ग्लैंड क्या काम करता है? पाइनियल ग्लैंड प्रोड्यूसेस 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, नंबर 1 मेलाटोनिन एंड नंबर 2 serotonin. This epithalamus, on the anterior side of the epithalamus, there's present a pineal gland, and this pineal gland produces 2 important hormones, melatonin and serotonin, and we will discuss these hormones in the next topic, endocrine control. तो इनका क्या रोल है, तो एंडोक्राइन कंट्रोल में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोड्यूस ये 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स करते हैं। नाउ these thalami, the 2 thalami, the sides or the walls of this hypothalamus are called as thalami, and these thalami are the release centers. These thalami, they are release centers. That means they relay the impulses. They forward the impulse to the brain, except that of smell. स्मेल के बगैर इसके लिए ऑल्फैक्टरी लोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बगैर जो है बाकी सारे जो है इंपल्सेस को रिले करता है। ओके, नाउ द लोअर पार्ट, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। जो इसका लोअर वाला पार्ट है डायन्सेफेलन का, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है हाइपोथैलेमस इसके जो नीचे वाले साइड से अटैच होता है एक और एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे वाले साइड से अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला मैंने रेड कलर से बनाया, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ। अब ये हाइपोथैलेमस जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस हाइपोथैलेमस नंबर 1, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस? नंबर 1, it controls the behavior responsible for the survival of the species. Very important concept. This hypothalamus controls the behavior essential for the survival of the species. For example, it controls feeding, it controls fighting, okay, it controls mating, etc. Mating means sex desire. So number 1 function. Number 2, all this hypothalamus is a connecting link. This hypothalamus is a connecting link between endocrine system and nervous system.
Very important, because this hypothalamus controls the secretion of the pituitary, the master pituitary gland. Okay, so it is the connecting link between nervous system and endocrine system, because it controls the secretion of the pituitary gland. Pituitary gland की secretion को control करता है, क्या यहाँ पे कैसे secrete करना है, कितना secrete करना है, और pituitary gland बाद में बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक में. इसलिए इसको क्या करते हैं, कंसीडर इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. Now it is also number third function. It's also thirst, hunger, and satiety center. Satiety center. There are thirst, hunger, and satiety centers on the on this hypothalamus. Okay, it controls these things. So it is our, ये हमारा फोर्थ ब्रेन हमने डिस्कस किया, क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या फंक्शंस है. नाउ अब जो मिड ब्रेन हमने देखा था, मिड ब्रेन में हमने देखा था कि दो पार्ट्स होते हैं. मिड ब्रेन में क्या देखा था, ऑप्टिक लोब्स या कार्पोरा क्वाड्रेंट जिम्ना. इस तरह से मैं बनाऊंगा आपको समझने के लिए. There are optic lobes. Optic lobes are 4 in number. These are the optic lobes, and there's another structure which is called as crura cerebri or cerebral peduncles, like this. So our midbrain has two parts. Number one, corpora quadrigymna. Corpora quadrigymna और optic lobes. Optic lobes. Optic lobes हमारे अंदर 4 होते हैं. They are 4 in number. 4 होते हैं, इसलिए इनको corpora quadrigymna भी कहते हैं. अब ये corpora, ये जो अपर वाले, ये भी प्रेजेंट होते हैं on the inferior side of the ब्रेन, सेरेब्रम के नीचे वाला साइड, जो वेंट्रल साइड नीचे की तरह. तो इसमें 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं. अपर वाले 2 होते हैं, इनको हम, इन अपर वालों को बोलते हैं सुपीरियर कोलिक्यूले. सुपीरियर कोलिक्यूले. नीचे वाले 2 है, these are called as inferior कोलिक्यूले. inferior कोलिक्यूले. और मिला के चारों को हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम्ना और ऑप्टिक लोब्स. Okay. Now, what is the function of these optic lobes? The upper 2 superior colliculi, they are responsible. Very important again. They are responsible for the superior colliculi. I'm talking about superior colliculi. Superior colliculi. These are responsible for the movement of the head. Movement of the head in response to vision. In response to vision. Okay, क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सीरियल देख रहा हूँ, एलसीडी लगा हुआ है, इस तरह से कोई शक्ल इस तरह से जा रहा है, मैं भी, मेरा हेड भी मूवमेंट करेगा इस तरह से. यानी विजन, यहाँ पे स्टिमुलस विजन है. विजन के स्टिमुलस से मैं अपने हेड को मूव कर रहा हूँ, और इट इज कंट्रोल्ड बाय दीज सुपीरियर कोलिक्यूलाई. ओके. Number these inferior colliculi, the inferior colliculi, these are concerned with the movement of the head in response to the auditory stimulus. अब मैं अपने हेड को मूव कर सकता हूँ, कोई आवाज देगा, यहाँ से कोई आवाज देगा, तो मैं इस तरह से मूव करूंगा अपने हेड को. यहाँ पे स्टिमुलस ऑडिटरी स्टिमुलस है, साउंड यहाँ पे स्टिमुलस है, और उसके लिए ये रिस्पांसिबल है इंफीरियर कोलिक्यूलर. तो these are responsible for the movement of the head in response to the auditory stimulus. Okay. Now इसका जो सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन का, वो है क्रस सेरिब्रम या सेरेब्रल पेडंकल्स या क्रूरा सेरिब्री.
क्रूरा सेरिब्री, और दूसरा नाम इसका है सेरिब्रल पेडिंकल्स। नाम याद रखो, आगे बुक्स में एक लिखा होता है, आगे बुक में एक तो क्रूरा सेरिब्री, सेरिब्रल पेडिंकल्स या क्रस सेरिब्रल है क्या ये चीज? These are the nervous tracts. These are actually the axons, the axonic portions of the neurons, and these connect the forebrain with the forebrain with the hindbrain. These crus cerebri, crura cerebri, they connected the forebrain with the hindbrain. Okay, so this was our midbrain. Now the hindbrain. Now our hindbrain. Hindbrain भी हमने देखा था कि 3 पार्ट्स होते हैं. ओके, क्या क्या? नंबर 1 पहला हमने देखा था cerebellum is the second largest part of the brain after cerebrum. It is the second largest part of the brain, second largest part of the brain, and it's also called as little brain. It's also called as little brain. Is it okay? Cerebellum is also externally covered by gray matter. इस तरह से हमने देखा था सेरिब्रम के बाहर वाले सरफेस ग्रे मैटर होती है, यानी कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। अंदर वाला जो पोर्शन है वो एक्सॉन्स का बना होता है, इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, इट इज अंदर की तरह जो है ये व्हाइट मैटर है, बाहर वाला जो है ये ग्रे मैटर है, ठीक है। एंड दिस cerebellum is also divided into 2 lobes which are called as cerebellar hemispheres. इस तरह से please note down the diagrams, they are very important. तो इस सेरिब्रम ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है। सेरिबेलम जो है इसके भी 2 लोब्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं नीचे बिल्कुल पोस्टीरियर साइड से, एक लोब यहाँ से, एक लोब यहाँ से, 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेरिबेलम के 2 हेमिस्फीयर जिनको हम सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स बोलते हैं, इसके 2 लोब्स हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, these are called as cerebellar hemispheres. Cerebellar hemispheres. Okay. दिस इज द, हम ये साइड सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, इस तरह से काट के इस तरह दिखेगी, इस तरह से एक ही दिखेगा, इस तरह से 2 है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो इस तरह से ये सेक्शन एक दिख रहा है, ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। दिस इज द सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो सेरिबेलर हेमिस्फीयर जो है इसका भी बाहर वाला ग्रे मैटर है, अंदर व्हाइट मैटर है, जिस तरह से सेरिब्रम में देखा था। अब इसके क्या फंक्शंस है? What are the functions of the cerebellum? Now this cerebellum is very highly developed in human beings. It's highly developed in man. So what are the functions? This cerebellum is concerned, it is meant for the equilibrium. That is, it maintains balance and posture of the body, balance and posture of the body। यानी जो पार्ट है सेरिबेलम हेड ब्रेन का, ये हमारी बॉडी की पोस्चर, ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते, ऐसे बैठ सकते हैं, ये सारे पोस्चर जो है बैलेंस जो मेंटेन करता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेरिबेलम। ओके,
And this cerebellum also controls fast actions. Cerebellum also controls fast actions like running, टाइपिंग एटसेट्रा. जैसे टाइपिंग हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे देखते हैं, फिर आस्ते एक्सपीरियंस होती है, फिर हम क्विकली करते हैं. ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस cerebellum. ओके, सो इट वाज द cerebellum, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन. इसके बाद दूसरा जो हैंड ब्रेन का पार्ट है, इसको पॉन्स वैरोलाई और सिंपली पॉन्स भी कह सकते हैं. दिस पॉन्स वैरोलाई, इट्स अ ब्रिज शेप्ड स्ट्रक्चर. इट इज अ ब्रिज शेप्ड स्ट्रक्चर. इज अ ब्रिज शेप्ड स्ट्रक्चर एंड it connects the cerebellar hemispheres. It connects the cerebellar hemispheres from the ventral aspect. So ये जो cerebellar hemisphere दो है, ventrally अंदर से इनको दो कनेक्ट करके रखते हैं, ब्रिज शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम पॉन्स वैरोलाई बोलते हैं. पॉन्स वैरोलाई connects the two cerebellar hemispheres from the ventral aspect. What is the it is actually the it is like this. Like this, the bridge shaped structure here, like this. This is the cerebrum. This is the cerebellum, the cerebellar hemispheres. Okay. So ये जो cerebellum के दो हेमिस्फीयर है, इनको कनेक्ट करके रखता है ये ब्रिज शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम pons veinerale कहते हैं. This is the pons veinerale. It connects the two cerebellar hemispheres. Now, what is the function of the pons veinerale? There is present an important center for breathing. It is called as pneumotaxic center. There is present a pneumotaxic center in the pons veinerale which controls respiration. It controls respiration. Okay. Now the last part of the hand brain, which is called as medulla oblongata. Last part, medulla oblongata. Medulla oblongata is the posterior most part of the brain. Posterior most part of the brain. Hand brain का जो पीछे वाला हिस्सा है medulla oblongata, and it is continuous with the spinal cord. It's continuous with the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है बिल्कुल कंटिन्यूअसली. ये दिस इज द pons veinerale here, जो हमने भी देखा था, ये pons है. ठीक है, और ये जो पार्ट है इसके बाद जो पोस्टर मोस्ट पार्ट है, दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये कंटिन्यूअस होता है स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड. अब ये जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसका भी अभी हमने देखा था. इस मेडुला ऑब्लोंगेटा जो एंटीरियर पार्ट है, इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये भी हाईली वस्कुलर होता है. मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट्स एंटीरियर पार्ट इज हाईली वस्कुलर एंड दिस इज कॉल्ड एज posterior choroid plexus. एक हमने देखा था एंटीरियर कोरल प्लेक्सस डायंसेफेलॉन के साथ, डायंसेफेलॉन में, और यहाँ पर पोस्टीरियर कोरल प्लेक्सस जो एंटीरियर साइड है इस मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो कि हाईली वस्कुलर है. इट आल्सो प्रोड्यूसेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो फ्लूइड इन ब्रेन के वेंट्रिकल्स में कैविटीज में होती है, वहां पर भी यहाँ पर भी ये प्रोड्यूस होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा? दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, this medulla oblongata, it regulates respiration. There are important respiratory centers present in the medulla oblongata. And number second,
it also controls some reflex actions. It also controls some reflex actions, not all, but some reflex actions like vomiting, coughing, sneezing, etc. And these reflex actions are controlled by this medulla oblongata. So this is the function of the medulla oblongata. Now there is a cavity present between these three structures: pons varolare, medulla oblongata, and the cerebellum. There is a cavity present in between this cavity. This is called as fourth ventricle. This is called as fourth ventricle. सेरिब्रम के दो केविटीज को हमने देखा था, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स. जो थर्ड वेंट्रिकल में है, जो डायंसपेना हमने देखा था, डायंसपेना हमने इस तरह से देखा था. ऊपर वाला जो एपिथैलेमस है, नीचे वाला हाइपोथैलेमस है, इसके साथ पिट्यूटरी होता है, और इसके बीच में जो केविटी थी वो थर्ड वेंट्रिकल है. ठीक है. और इसकी केविटी के बीच में जो, इट इज नॉट अ केविटी ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगेटा, नॉट एनी पार्ट, इट इज अ केविटी बिटवीन द दीस थ्री पार्ट्स. दिस केविटी इज कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल. जो दो चारों केविटीज है सेरिब्रम के दो, और ब्राइनस्पाइनम के अंदर तीसरी केविटी, चौथी केविटी, इनके बीच में, इन्हों में भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बिल्कुल सर्कुलेट होता है इनके अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ह्यूमन बीइंग. थैंक्स. एट लास्ट आई advise to all my dear students to be in touch with studies because time is very precious. Thank you.